السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. 8th کی سائنس میں ہمارا جو ٹاپک ہے کول اینڈ پیٹرولیم، اس میں ہم نے کل کول کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور آج ہم ڈسکس کریں گے پیٹرولیم کے بارے میں. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جو لائٹ وہیکلز ہوتی ہیں یا اس طرح موٹر سائیکل ہے، اسکوٹر ہے، اسکوٹی وغیرہ، یا اسی طرح کار ہوتی ہے، اس میں پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے. یعنی پیٹرول اس میں ایز اے فیول استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے ٹرک ہو گیا، بس ہے یا ٹریکٹر ہے یا پھر ٹاٹا سومو ہے، ان میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے ایز اے فیول، یعنی فیول کے طور پر. اب یہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہیں یہ دونوں پیٹرولیم سے حاصل کیے جاتے ہیں. ان دونوں کیا ہیں؟ پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. تو اب یہ جو پیٹرولیم ہے یہ کس طرح وجود میں آیا، یہ کس طرح بنا ہے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے. کہتے ہیں کہ جو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے سمندر میں کچھ جو لیونگ آرگینزمز تھے، جب وہ ڈیڈ ہو گئے تو وہ آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے تھے. اور یہ ڈیڈ باڈیز جو تھی ان کی، یہ ان کے اوپر پھر سینڈ کی لیئرز جو ہے اور مٹی کی لیئرز جمع ہو جاتی تھی. تو ملینز آف ایئرس کے بعد چونکہ جب وہ مٹی کی ریت کے نیچے دب گئے اور وہاں پر ہوا بھی موجود نہیں تھی اور ٹیمپریچر زیادہ تھا اور پریشر بھی تھا مٹی کا یا ریت کا، تو اس یعنی مٹی اور ریت کے بہت زیادہ دباؤ میں اور بہت زیادہ وہاں پر ٹیمپریچر تھا، ہوا کی غیر موجودگی تھی، اس وجہ سے وہ ٹرانسفارم ہو گئے. کس میں؟ پیٹرولیم اور نیچرل گیس میں. کون ٹرانسفارم ہو گئے؟ ڈیڈ آرگینزمس. یعنی ملینز آف ایئرس ایگو کیا ہوا کہ کچھ لیونگ آرگینزمس تھے جو سمندر کے اندر وہ جب ڈیڈ ہو گئے کسی وجہ سے، تو وہ آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ پر جمع ہو گئے اور پھر ان کے اوپر مٹی اور ریت کی تہیں جمتی گئیں. اور پھر صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کیا ہوا، جو مٹی کا اور ریت کا ان پر دباؤ تھا اس کے اندر ٹیمپریچر بھی ریز ہو گیا اور پھر ہوا بھی نہیں تھی. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ جو ڈیڈ آرگینزمس تھے یہ کنورٹ ہو گئے کس میں؟ پیٹرولیم میں اور نیچرل گیس میں. مگر یہ بھی ایک سلو پروسیس ہے، اس کو بھی ملینز آف ایئرس لگ گئے. تو یہ فگر ایک دکھائی گئی ہے، فگر 2.4. اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو پیٹرولیم کے ڈپازٹس ہیں، پیٹرولیم کے جو ذخائر ہیں اور نیچرل گیس کے، قدرتی گیس جسے CNG یا LPG وغیرہ بنتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پیٹرولیم اور گیس کے جو ریزروز ہیں یہ پانی سے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیل ہوتا ہے یعنی مٹی کا تیل وغیرہ یا پیٹرول، یہ پانی سے ہلکے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ پانی سے اوپر ان کو دکھایا گیا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو پیٹرولیم نکالا گیا تھا وہ USA کی ایک اسٹیٹ ہے پینسلوانیا، وہاں پر 1859 میں 1859 میں نکالا گیا تھا. یعنی پہلا کنواں جو کھودا گیا تھا پیٹرولیم کا وہ پینسلوانیا میں 1859 میں کھودا گیا تھا. اور اس کے 8 سال کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں یعنی 1867 میں آسام جو اسٹیٹ ہے وہاں پر ایک جگہ ہے مکوم، وہاں پر بھی ایک تیل کا کنواں کھودا گیا تھا، یعنی وہاں بھی تیل نکالا گیا تھا. اور آج کل انڈیا میں پیٹرولیم
असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा जो दरिया हैं दो साउथ इंडिया के, उनके जो बेसिन्स हैं उनमें पाया जाता है। मुंबई हाई जो है, आपको बता दूं, मुंबई हाई ये जो मुंबई सिटी है, इससे चूँकि समुद्र के किनारे पर है, तो मुंबई सिटी से थोड़ा सा दूर समुद्र में एक जगह है जहाँ से तेल निकाला जाता है, उसको मुंबई हाई कहते हैं। अब उसके बाद है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को साफ़ कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम जो है ये एक जब ज़मीन से निकाला जाता है तो ये बिल्कुल काला और गाढ़ा एक किस्म का लिक्विड होता है, बहुत ये घना होता है, कीचड़ जैसे। तो फिर इसमें जो इसकी जो बू होती है वो बहुत ही बदबू होती है इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये उनका मिक्सचर होता है। इसमें पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सट्रा, ये तमाम चीज़ें पेट्रोलियम से ही हासिल की जाती हैं। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग, यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो इसमें सब्सटेंसेस होती हैं मिक्सड फॉर्म में, इनको अलग अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में, यानी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिन्हें पेट्रोलियम रिफाइनरी कहा जाता है। उसके अंदर ये पेट्रोलियम जो है इसको साफ़ किया जाता है, या इसके जो अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो जुज़ हैं, उनमें इसको तब्दील किया जाता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, या क्या कहते हैं इसको, पैराफिन वैक्स है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये जो इसके डिफरेंट पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं टेबल 2.1 में, और इनके इस्तेमाल भी आगे दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन्होंने दिखाया है वो है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी इससे जो सबसे पहली चीज़ निकलती है पेट्रोलियम से वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, यानी LPG। जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं चूल्हे जलाने के लिए, कुकिंग गैस, ये वही होती है, और इसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दूसरा कंस्टिट्यूएंट जो है पेट्रोलियम का, वो है पेट्रोल। तो मैंने आपको भी बताया था कि पेट्रोल जो है वो छोटी गाड़ियों जैसे कार या बाइक वगैरह जो हैं, स्कूटर्स वगैरह, स्कूटीज़, उनमें एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ये हवाई जहाज़ों में भी इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल, और जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। ड्राई क्लीनिंग जो की जाती है कपड़ों की, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है इसका, या कंस्टिट्यूएंट है, वो है केरोसिन। केरोसिन जो मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, ये हम स्टोव में इस्तेमाल करते हैं। लैंप जो होते हैं इसके केरोसिन के, उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जहाज़ जो होते हैं, उनमें एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है ये। तो उसके बाद है डीजल। डीजल मैंने आपको पहले भी बताया था, डीजल जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह, या जनरेटर्स होते हैं बिजली के, उनमें ये इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर लुब्रिकेटिंग इन मशीनरी, यानी जो मशीनरी होती है उसके जो पुर्जे होते हैं उसमें ये तेल डाला जाता है ताकि उनमें
फ्रिक्शन पैदा ना हो जाए, एज ए लुब्रिकेंट इसे कहते हैं। तो उसके बाद है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो है ये इस्तेमाल होती है ऑइंटमेंट्स में, यानी मेडिसिन जो है ऑइंटमेंट, जैसे जो ट्यूब वगैरह होते हैं मेडिसिन के, उनमें इस्तेमाल होता है। और कैंडल्स जो हम मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं वो भी पैराफिन वैक्स की बनती है, और वैसलीन बनाई जाती है इससे। उसके बाद है बिटुमेन। बिटुमेन मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सड़क पर जो है मेटलिंग की जाती है, जिसे हम लुक कहते हैं पहाड़ी में, तो उसमें पहले कोल तार इस्तेमाल होती थी, जो तेल उसमें डालते हैं जिससे वो बजरी का रंग जो है वो काला हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर रोलर चलाया जाता है। तो पहले इसमें कोल तार का इस्तेमाल होता था, अब उसकी जगह बिटुमेन का इस्तेमाल होता है। तो ये जो है यानी रोड सरफेसिंग में इस्तेमाल होता है इसका। और उसके अलावा पेंट्स जो हैं, डिफरेंट किस्म के जो पेंट होते हैं उनमें भी एज ए कंस्टिट्यूएंट ये इस्तेमाल होता है पैराफिन वैक्स। तो ये जो बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं जो पेट्रोलियम से हासिल होती हैं, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह, इनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। और ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बनाने के में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हैं। डिटर्जेंट्स हो गए जो हम कपड़े धोने का वो जो सर्फ वगैरह, व्हील वगैरह यूज़ करते हैं, या जिसे हम कहेंगे कपड़े धोने का साबुन, उसे डिटर्जेंट कहते हैं। फिर इसी तरह फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह। इसी तरह कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक एट्सट्रा। इन फाइबर्स के बनाने में भी ये पेट्रोकेमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद पॉलीथीन। पॉलीथीन जो लिफाफा होता है, आप देखते हैं हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो है ये होता है। तो ये पॉलीथीन लिफाफा जो है और इसके अलावा प्लास्टिक जो हैं, जितने भी किस्म के प्लास्टिक हैं जो मुख्तलिफ जिससे चीज़ें बनती हैं, जैसे कुर्सियाँ, टेबल वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये प्लास्टिक भी पेट्रोकेमिकल से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ये नेचुरल गैस से हासिल की जाती है, और ये फर्टिलाइज़र्स जो खाद हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में, यूरिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। और चूँकि ये जो पेट्रोलियम है इसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बाकी कल जो है हम नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे।